Hello everyone, welcome back to my channel, and those who are new on this channel, please do not forget to subscribe our amazing channel. From today, I am going to start a series for system physiology means plant physiology. In this unit, we have to read 8 chapters. First one is the photosynthesis. Photosynthesis में जो टॉपिक हमें पढ़ने हैं that is light harvesting complex, mechanism of electron transport, that is cyclic photophosphorylation as well as non-cyclic photophosphorylation, and chemiosmotic hypothesis, that is chemiosmotic mechanism. Next one is the photoprotective mechanism and carbon dioxide fixation, and in carbon dioxide fixation that is C3 cycle, C4 cycle and CAM pathway. Second chapter is respiration and photorespiration. In this chapter, citric acid cycle, plant mitochondrial electron transport and ATP synthesis, alternate oxidase, photorespiratory pathway हमें पढ़ने हैं. The third chapter is nitrogen metabolism. Nitrogen metabolism में nitrate and ammonium assimilation, amino acid biosynthesis हमें पढ़ने हैं. The next chapter is plant hormones. Plant hormones total 5 होते हैं: ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिबरलिन, एब्सिसिक एसिड एंड इथिलीन. एंड ऑल 5 हार्मोन्स का बायोसिंथेसिस, स्टोरेज, ब्रेकडाउन एंड ट्रांसपोर्ट, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमें पढ़ने हैं. द नेक्स्ट चैप्टर इज सेंसरी फोटोबायोलॉजी. सेंसरी फोटोबायोलॉजी में स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ फाइटोक्रोम्स, क्रिप्टोक्रोम्स एंड फोटोट्रोपिन्स पढ़ने हैं. इनके अलावा स्टोमेटल मूवमेंट, फोटोपीरियोडिज्म एंड बायोलॉजिकल क्लॉक्स भी हमें पढ़ने हैं. नेक्स्ट चैप्टर इज सॉलिड ट्रांसपोर्ट एंड फोटो एसिमिलेट ट्रांसलोकेशन. इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है: अपटेक, ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर, आयंस, सॉल्यूट्स एंड माइक्रोमोलिक्यूल्स फ्रॉम द सॉइल थ्रू सेल्स अक्रॉस मेम्ब्रेन, थ्रू जाइलम एंड फ्लोएम, ट्रांसपिरेशन, मैकेनिज्म ऑफ लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ फोटो एसिमिलेट्स, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है. नेक्स्ट चैप्टर की अगर बात करें दैट इज सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स. सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में हमें क्या पढ़ने हैं: टर्पीन्स, फिनॉल्स एंड नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स की बायोसिंथेसिस एज वेल एज देयर रोल्स. The last chapter of this unit is stress physiology. Stress physiology में हमें पढ़ना है responses of plants to biotic, that is pathogen and insects, as well as abiotic, that is water, temperature and salt stresses. So इस unit में total 8 chapters पढ़ने हैं और 8 chapters one by one complete करेंगे in detail. After that we will practice some question that are asked in the CSIR exam. So फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं दैट इज सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स. सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में हमें क्या पढ़ने हैं: बायोसिंथेसिस ऑफ टर्पीन्स, फिनॉल्स एंड नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स एंड देयर रोल्स. सो फर्स्ट चैप्टर इज सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स एंड प्लांट डिफेंस. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स एंड प्लांट डिफेंसेस. And in this chapter we have to study biosynthesis of terpenes, phenols and nitrogenous compounds and their roles. But before starting the lecture, this is about me. I am Dr. Manisha Sinha, PhD from Jawaharlal Nehru University, New Delhi in plant microbe interaction. I have qualified CSIR, UGC, NET, JRF. Apart from that, I have qualified various national level entrance exam at BSc, MSc and PhD level. I have 8+ year research experience in biological sciences, 4+ year teaching experience and published couple of international research paper. Now let's start the lecture and the topic is secondary metabolites. नेचुरल हैबिटेट की अगर बात करें तो नेचुरल हैबिटेट में जितने भी प्लांट्स होते हैं दे आर सराउंडेड बाय इनॉर्मस नंबर ऑफ पोटेंशियल इनेमीज. पोटेंशियल इनेमीज क्या होते हैं? बैक्टीरिया होते हैं, वायरसेस होते हैं, फंजाई होते हैं, निमेटोड्स होते हैं, माइट्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, मैमल्स होते हैं एंड अदर हर्बीवोरस एनिमल्स. सो
Nearly all ecosystem contain a wide variety of these potential enemies, but by nature plants इनको avoid नहीं कर सकते हैं, इन herbivores and pathogens को avoid नहीं कर सकते हैं simply by moving away, क्योंकि plants में locomotion की ability नहीं होती है। प्लांट्स अपने आप को एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट नहीं कर सकते हैं, इसलिए प्लांट्स ने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अलग डिवाइसेस बनाया है। फर्स्ट वन इज द क्यूटिकल एंड पेरिडर्म। क्यूटिकल क्या है? इट इज अ वैक्सी आउटर लेयर। पेरिडर्म की अगर बात करें तो इट इज द सेकेंडरी प्रोटेक्टिव टिश्यू, और ये टिश्यू बनता है आफ्टर सेकेंडरी ग्रोथ। इनका काम क्या है? दे इन्वॉल्व इन रिटार्डिंग वाटर लॉस, मीन्स ये वाटर लॉस को प्रिवेंट करते हैं। और दूसरा, दे प्रोवाइड बैरियर्स टू बैक्टीरियल एंड फंगल एंट्री। नेक्स्ट वन इज द सेकेंडरी मेटाबोलाइट। सेकेंडरी मेटाबोलाइट की अगर बात करें तो दे डिफेंड प्लांट्स अगेंस्ट वैरायटी ऑफ हर्बीवोर्स एंड पैथोजेनिक माइक्रोब्स। दूसरी बात, ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है इन केस ऑफ लिग्निन। लिग्निन इज ए सेकेंडरी मेटाबोलाइट। नेक्स्ट वन इज द सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स पिगमेंट्स भी हो सकते हैं एज इन केस ऑफ एंथोसाइनिन। बट सवाल यहाँ पे ये है कि वैसा क्या मैकेनिज्म है जिसके थ्रू प्लांट्स अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट बोथ हार्बिवोरी एज वेल एज पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म। पहला मैकेनिज्म की अगर बात करें तो देयर आर 3 क्लासेस ऑफ कंपाउंड्स जो कि सरफेस प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, एंड सरफेस प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने वाले 3 क्लासेस ऑफ कंपाउंड है। फर्स्ट वन इज द क्यूटीन, सेकेंड वन इज द suberin and third one is the waxes. So cutin, suberin and waxes ये तीनों के तीनों सरफेस प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, मीन्स नेक्स्ट मैकेनिज्म की अगर बात करें तो दे आर स्ट्रक्चर एंड बायोसिंथेटिक पाथवे फॉर 3 मेजर क्लासेस ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। अब सवाल यह है कि 3 मेजर क्लासेस ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है क्या? दे आर टर्पीन्स, फिनोलिक्स एंड नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। और इस चैप्टर में हमें पढ़ना है बायोसिंथेसिस ऑफ टर्पीन्स, फिनोलिक्स एंड नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स एंड देयर रोल्स। नाउ द लास्ट mechanism is host pathogen interaction. Host pathogen interaction is controlled by genetic mechanism and then cell signaling processes associated with the infection and plant responses to pathogen attack. So these are the mechanism by which plant protects themselves against both pathogen as well as herbivores. So these are the 3 classes of compound जो कि surface protection provide करता है। First one is the cutin, second one is the waxes and third one is the suberin. So there are 3, so जितने भी plants parts, so plants के जितने भी parts एक्सपोज होते हैं एटमॉस्फेयर से, वो कोटेड होते हैं लिपिड मटेरियल से। किससे कोटेड होते हैं? लिपिड मटेरियल से कोटेड होते हैं जो वाटर लॉस को रिड्यूस करता है एंड हेल्प ब्लॉक द एंट्री ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया एंड फंजाई। एंड देयर आर 3 प्रिंसिपल टाइप्स ऑफ कोटिंग। फर्स्ट वन इज द क्यूटीन, सेकेंड वन इज द वैक्सेस एंड थर्ड वन इज द सुबेरिन। क्यूटीन की अगर बात करें तो ये प्रेजेंट होते हैं एबव ग्राउंड पार्ट्स ऑफ द प्लांट में। वैक्सेस की अगर बात करें तो दे आर प्रेजेंट ऑन अंडरग्राउंड पार्ट्स ऑफ द प्लांट, वुडी स्टेम्स एंड हील्ड ओन्स। सुबेरिन की अगर बात करें तो ये क्यूटीन एंड सुबेरिन दोनों के साथ एसोसिएटेड होते हैं। किसके साथ एसोसिएटेड होते हैं? क्यूटीन एंड सुबेरिन दोनों के साथ एसोसिएटेड होते हैं। क्यूटीन की अगर बात करें तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द सेवरल लेयर्स ऑफ क्यूटिकल। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेवरल लेयर्स ऑफ क्यूटिकल। दिस इज द फर्स्ट सेल एंड दिस इज द सेकेंड सेल। सेल में, प्लांट सेल की खास बात यह है कि इसमें लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं। दे आर बेसिकली एपिडर्मल सेल्स। एपिडर्मल सेल्स आर द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्लांट पार्ट। चाहे रूट हो, चाहे स्टेम हो, चाहे लीफ हो, किसी भी प्लांट के पार्ट में जो आउटर मोस्ट लेयर होते हैं दैट इज एपिडर्मल लेयर। रूट में एपिडर्मिस को एपिब्लेमा बोलते हैं, लेकिन शूट में इसे एपिडर्मिस बोलते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट एपिडर्मल सेल, दिस इज द सेकेंड एपिडर्मल सेल।
दिस इज द टोनोप्लास्ट जो वैक्यूल का मेम्ब्रेन है, एंड दिस इज द सेल मेम्ब्रेन ऑफ सेकंड, दिस इज द सेल मेम्ब्रेन ऑफ अ सेल। सेल मेम्ब्रेन के जस्ट बाहर वाली जो लेयर होती है उनको सेल वॉल बोलते हैं, और दो सेल एक दूसरे से हेल्ड टुगेदर होते हैं बाय मिडिल लैमेला। सेल वॉल के जस्ट ऊपर जो लेयर होता है दैट इज क्यूटिकल लेयर। क्यूटिकल लेयर बने होते हैं क्यूटीन से। क्यूटीन की अगर बात करें तो दे आर माइक्रोमोलिक्यूल्स, और ये पॉलीमर्स होते हैं जिसमें काफी सारे लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स होते हैं। दो लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स की अगर बात करें तो वो ईस्टर लिंकेज से ज्वाइंट होते हैं, और ईस्टर लिंकेज से ज्वाइन होने के बाद काफी सारे लॉन्ग चेन फैटी एसिड जो होते हैं वो रिजिड 3 डायमेंशनल नेटवर्क बनाते हैं। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि क्यूटीन जो होता है वो लॉन्ग चेन फैटी एसिड से बने होते हैं, और फैटी एसिड्स दो तरह के होते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड की अगर बात करें तो वो मोनो अनसैचुरेटेड भी हो सकता है एंड पॉली अनसैचुरेटेड भी हो सकता है। क्यूटीन की अगर बात करें तो ये सैचुरेटेड और मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से बनते हैं। सैचुरेटेड जो होता है वो 16 कार्बन का फैटी एसिड्स है, मोनो अनसैचुरेटेड जो है वो 18 कार्बन का फैटी एसिड्स है। इसमें हाइड्रोक्सिल और इपोक्साइड ग्रुप जो होता है दो पोजीशन पे हो सकता है, या तो चेन के मिडिल में प्रेजेंट होता है या फिर कार्बोक्सिलिक ग्रुप के जस्ट अपोजिट एंड पे प्रेजेंट होता है। दिस इज द कार्बोक्सिलिक ग्रुप, दिस इज द कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड दिस इज द OH ग्रुप। फैटी एसिड्स में OH या तो चेन के मिडिल में प्रेजेंट होगा या फिर कार्बोक्सिलिक ग्रुप के जस्ट अपोजिट एंड पे प्रेजेंट होगा। क्यूटीन की अगर बात करें तो इट इज द प्रिंसिपल कंस्टिट्यूएंट ऑफ क्यूटिकल, जो कि मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर है और सेल के आउटर वॉल को कोट करता है, दैट इज एपिडर्मिस सेल को कोट करता है इन ऑल द एरियल पार्ट्स ऑफ द हर्बेशियस प्लांट्स। सो क्यूटिकल इज कंपोज्ड ऑफ 3 लेयर्स। जो टॉप कोटिंग है दैट इज वैक्स, दिस इज द वैक्स जो कि टॉप कोटिंग है। मिडिल लेयर इज द क्यूटिकल प्रॉपर, जिसमें क्यूटीन एंड वैक्स एम्बेडेड होते हैं। क्यूटीन बेसिकली वैक्स में एम्बेडेड होते हैं और इसको बोलते हैं क्यूटिकल प्रॉपर। क्यूटिकल प्रॉपर के जस्ट नीचे जो लेयर होती है दैट इज क्यूटिकुलर लेयर। क्यूटिकुलर लेयर में क्यूटीन और वैक्स तो होता ही है, क्यूटीन और वैक्स के अलावा अदर सेल वॉल कंपोनेंट्स होते हैं दैट इज सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन एंड अदर कार्बोहाइड्रेट्स। इन एडिशन टू क्यूटीन, क्यूटिकल में कंटेन सेकेंड लिपिड पॉलीमर जो कि लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन चेन से बने होते हैं और उसको बोलते हैं क्यूटेन। सो क्यूटिकल, क्यूटीन एंड क्यूटेन दोनों प्रेजेंट होते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज द वैक्सेस। वैक्सेस की अगर बात करें तो ये मैक्रोमोलिक्यूल नहीं होते हैं, बट इट इज ए कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ लॉन्ग चेन असाइल लिपिड्स जो कि एक्सट्रीमली हाइड्रोफोबिक होता है। Most common component of waxes are straight chain alkane and alcohol of 25 to 35 carbon atoms. जो long chain aldehyde, ketone and esters and fatty acids are also found. So this is the structure of waxes. This is the straight chain alkane, fatty acid ester, long chain fatty acids and long chain alcohol. Waxes of the cuticle are synthesized by epidermal cells. क्योंकि ये just epidermal cells के बाहर होते हैं. They leave the epidermal cells as droplets and these droplets pass through pores in the cell wall by unknown mechanism. Top coating of cuticle wax often crystallizes as an intricate patterns of rods, tubes and plates. So this is the structure of scanning electron microscope जो कि surface wax deposit को दिखा रहा है। Now next one is the suberin. Suberin की अगर बात करें तो they are polymer. Cutin is a polymer. Waxes are not polymer, but suberin is also polymer whose structure is very poorly understood. Like cutin, suberin is formed from hydroxy and epoxy fatty acids joined by ester linkage. Cuticle भी hydroxy and epoxy fatty acids से बने होते थे और ester linkage से joined होते थे। बट क्यूटीन और सुबेरिन में डिफरेंस है, इसमें डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं। सो सुबेरिन में जो फैटी एसिड्स होते हैं दे आर डाई कार्बोक्सिलिक एसिड और इनका मोर लॉन्ग चेन कंपोनेंट्स होते हैं। सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ फिनोलिक कंपाउंड्स एज ए पार्ट ऑफ इट्स स्ट्रक्चर। सुबेरिन इज ए सेल वॉल कंस्टिट्यूएंट्स जो कि प्रेजेंट होते हैं मेनी लोकेशंस में थ्रू आउट द प्लांट। बेस्ट एग्जांपल इज
कैस्पेरियन स्ट्राइप्स, जो कि सबको पता होगा कि कैस्पेरियन स्ट्राइप्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं। कैस्पेरियन स्ट्राइप की अगर बात करें तो ये प्रेजेंट होते हैं रूट के इंडोडर्मिस में। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? रूट के इंडोडर्मिस में प्रेजेंट होते हैं। और रूट के इंडोडर्मिस में प्रेजेंट होते हैं, इट मीन्स कि इट ए बैरियर बिटवीन एपोप्लास्ट ऑफ कॉर्टेक्स एंड स्टिल। सुबेरिन इज a principal component of outer cell wall of all the underground organs and it is associated with cork cells of periderm tissue that forms outer work of stem roots during secondary growth of woody plants. Suberin also forms at the site of leaf abscission and in area damaged by disease or wounding. इसके अलावा अगर बात करें रोल ऑफ या फंक्शन ऑफ क्यूटीन वैक्सेस एंड सुबेरिन, इनका फंक्शन है हेल्प टू रिड्यूस ट्रांसपिरेशन एंड पैथोजेन अटैक। क्यूटीन, सुबेरिन एंड एसोसिएटेड वैक्स की अगर बात करें तो दे फॉर्म्स बैरियर बिटवीन प्लांट्स एंड इट्स एनवायरनमेंट टू कीप द वाटर एंड पैथोजेन out from the parts of the plant. Cuticle की अगर बात करें, it is very effective in at limiting water loss from aerial parts of the plant but does not block transpiration completely because even the stomata closed some water is lost. Thickness of cuticle जो होता है वो vary करता है with environmental condition. अगर कोई प्लांट एरिड एरिया में ग्रो कर रहा है तो वहां पे जो क्यूटिकल लेयर होगा वो थिकर होगा, लेकिन जो प्लांट मॉइस्ट हैबिटेट में ग्रो कर रहा है उसका क्यूटिकल लेयर जो होगा वो थिनर होगा। बट प्लांट फ्रॉम मोस्ट हैबिटेट्स ऑफन डेवलप थिक क्यूटिकल व्हेन ग्रोन अंडर ड्राई कंडीशन। क्यूटिकल एंड सुबेराइज टिश्यू आर बोथ इंपॉर्टेंट इन एक्सक्लूडिंग फंजाई एंड बैक्टीरिया, ऑल्दो दे डू नॉट अपीयर टू बी एज इंपॉर्टेंट इन पैथोजेन रेजिस्टेंस। मेनी फंजाई पेनिट्रेट डायरेक्टली थ्रू द प्लांट सरफेस बाय मैकेनिकल मींस। कुछ फंजाई जो होते हैं वो एक एंजाइम सिक्रीट करते हैं, दैट इज क्यूटिनेज। ये क्यूटिनेज एंजाइम क्यूटीन को हाइड्रोलाइज करता है और प्लांट में पैथोजेन की एंट्री को फैसिलिटेट करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट क्यूटीन, वैक्सेस एंड सुबेरिन, एंड इन माय नेक्स्ट लेक्चर आई विल डिस्कस अबाउट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, that is biosynthesis of terpenes, phenols and nitrogen containing compounds as well as their roles one by one. So stay tuned for the next lecture.